बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। बहुत शांति है यहाँ पर। ना देखा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात थाली में कटोरा लेकर आलू भात मूड़ी भात मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। छोड़ना जाने ना बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल आलोक की जोड़ी टाइगर वालों माने ना ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना बदतमीज दिल सर आना चाहेंगे। आइए प्रतीक सर जहाँ भी हो स्टेज पे आइए। प्रतीक सर हवा ना देखा ढिमका वाला प्रतीक सर का सिंगाला खा के शेर का गुरा ना देखा पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को स्टेज पे प्रतीक सर यस कमिंग एमजी ऑफ द कॉलेज। बॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड राय के पहाड़ पर 3 फुटा लीली फुट मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। अय्याशी के मनवे से खुद को मोड़ना जाने ना कंबल शर्म का ओढ़ना गाना गाने वाला जो तालियां बजती रहे करके खड़ा है तुम बस छोड़ना जाने ना बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल माने ना। What we call an all-rounder, whether it's the dancing or the basketball. We'd like. सो आप लोग के डिमांड पे एक बार और होने वाला है अभी। Shivam Gupta sir, please come up on the stage. Sir, we have some dancing going on here. Sir, please jaldi आइए. 1 2 3 4 hip hey. Can we have a huge round of applause for the seniors? प्रतीक सर के लिए भी, शिवम सर के लिए भी, गजेंद्र सर के लिए भी और रोहित सर के लिए स्पेशली बहुत सारी तालियां। क्या तालियां कम पड़ रही है आप लोगों की? Thank you sir. Thank you so much, seniors. एक मिनट शिवम सर आओ ऊपर आइए। So, what next? Any guesses? No guesses. Okay, let me help you. Next is the title segment again. Starting with Miss Jolly Good Fellow. Any guesses for Miss Jolly Good Fellow? Miss, I said. The Miss Jolly Good Fellow is Yasha Chaudhary ma'am. Please come on the stage, ma'am. Ma'am, please come up on the stage. Yasha ma'am, please be quick. Next, moving on, we have Mr. Jolly Good Fellow. Any guesses, dear seniors? It's a male category. Mr. Jolly Good Fellow. जो हमेशा खुश रहता है, सारे सीनियर्स खुश और सारे जूनियर्स खुश. It's a male category, Mr. Jolly Good Fellow. Any guesses? First
please give round of applause for Yasha Chaudhary ma'am. Now Mr. Jolly Good Fellow goes to, any guesses? It's Satyam Dikshit sir, EC branch. Satyam sir, please come up on the stage. And the next category is Best Sports Person Male. So the best sports person is Shrivan Singh sir from Electrical branch. Now best sports person in female category. Shrivan sir, please come up on the stage. And the next category is Best Sports Person Female. Everybody knows this. Everybody knows this. Please. Any guesses? Yes, it is Divya Chaudhary ma'am from Divya EC. Chaudhary ma'am, EC branch, EC 4th year. Please. तालियों के साथ स्वागत कीजिए दिव्या चौधरी मैम. The best sports person ever. Next category we have for Mr. All-Rounder. All-Rounder is a person who has excellence in every field. That's a male category. Mr. All-Rounder, who should it be? Mr. All-Rounder goes to KP Yadav sir, Electrical branch. KP sir, please come up on the stage. And the next category is Miss All-Rounder. Give a huge round of applause for KP sir. Next we have a Miss All-Rounder. All-Rounder category, that is All-Rounder in female section. Any guesses? Any guesses? No Please wrong बताइए. guesses with this one. It's pretty sure. It's definitely Ruhi Pathak ma'am from EC final year. go go. मैम प्लीज आइए स्टेज पर. Moving on, we have our next category. Most efficient personality of our college. The efficient person is the one who has been participating in all the events and who has the leadership skills too. So let me call upon our ma'am, Kavita Tripathi from EC 4th year. She is our most efficient personality of our college. She has been through in all the rigorous preparations of our exams and our sports. Please give a huge round of applause, dear seniors. The title is Miss Dabang. Please cheer them up. Moving on, Mr. Dabang, the Dabang personality of our college. Any guesses? So we have Santosh Singh sir from EE branch. Please cheer him up. नेता सर हमारे संतोष सर कहाँ हैं आप? जल्दी आइए. मिस्टर दबंग संतोष सर. मेरी शायरी तो आपने काफी सुन ली. अब थोड़ा सचिन पांडे सर को बुलाया जाए. तो सचिन सर, हम आपसे आग्रह करते हैं, प्लीज स्टेज पर आ जाइए. तालियों के साथ उनका स्वागत तालियों के साथ प्लीज उनका स्वागत कीजिए. प्लीज सचिन सर. और दोस्तों मैं तो ऐसे ही आ गया, मेरा कोई पहले से फिक्स नहीं था, मुझे जल्दी जल्दी बुला लिया गया. तो और अभी कोई मुझसे पूछ रहा था, सर ये बताइए सच और विश्वास में क्या फ़र्क है? सच और विश्वास में क्या फ़र्क है, कोई मुझसे पूछ रहा था. तो मैंने कहा देखो, यहाँ से पास आउट होने के बाद आप इंजीनियर कहलाओगे, ये सच है. आप इंजीनियर कहलाओगे, ये सच है. और आप इंजीनियर बन जाओगे, ये एक विश्वास है. तो जहाँ जहाँ पे आपको मेरी बात समझ में आए तो प्लीज़ इशारा करते रहिएगा. और आप मेरा यकीन मानिए, अगर कोई सपोर्ट देने वाला हो तो मैं रात भर भी परफॉर्म कर सकता हूँ. तो सबसे पहले मैं एक कविता पढ़ना चाहूँगा जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में अपने सीनियर्स के साथ शेयर करी थी. और आज मैं अपने जूनियर्स के सामने, क्योंकि वो कविता मुझे भी अच्छी लगती है और बेशक आप सबको भी अच्छी लगी थी.
ये कविता एक कपल पे डिपेंडेड है, शायद आपको याद आ गई। ये कविता एक कपल पे डिपेंडेड है, एक शादीशुदा कपल। हस्बैंड को देखकर ऐसा लगता है जैसे हवा का अगर एक झोंका भी चल जाए तो वो घूम जाएंगे, और मैडम को देखकर ऐसा लगता है जैसे सारे हाथी स्ट्राइक पे चले गए, बस एक को छोड़ गए। ये मैडम की ये फिजिक है। तो देखिए कविता क्या कहती है, मेरा मतलब जो पोयम मैं सुनाने जा रहा हूँ कि एक सीखिया पहलवान पर ऊपर वाले का कुठाराघात, कि एक सीखिया पहलवान पर ऊपर वाले का कुठाराघात, पत्नी के लिए था जैसे एक चलता फिरता उत्पात। पतिदेव बेचारे डंग से तो पत्नी थी डंका, जैसे भारत के नक्शे के बाजू में श्रीलंका, जैसे भारत के नक्शे के बाजू में श्रीलंका। एक छोटा सा दशमलव बहुत बड़े शून्य के आजू बाजू भटक रहा था। सच मानिए दोस्तों, अंगूर के गले में कद्दू लटक रहा था। धन्यवाद। सच मानिए दोस्तों, अंगूर के गले में कद्दू लटक रहा था। ये अनूठी जोड़ी मथुरा के रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और मैडम की निगाहें वजन तौलने की मशीन पर अड़ी थी, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। तो मैडम की निगाहें वजन तौलने की मशीन पर अड़ी थी। तो जैसे जैसे पतिदेव को मशीन पर चढ़ाया गया, उसमें 1 रुपए का सिक्का डाला, उसमें से टिकट बाहर आया। तो उस पर कपड़े और जूते समेत हस्बैंड का वजन था 25 किलो। हस्बैंड का वजन था कपड़े और जूते समेत 25 किलो। और जैसे ही उसको पलटकर भाग्यफल पड़ा तो उस पर लिखा था कि चुनौती जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। उस पर लिखा था कि चुनौती जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। अब जैसे ही आई मैडम की बारी, मैडम काया समेत मशीन पर पधारी। अब जैसे ही आई मैडम की बारी, मैडम काया समेत मशीन पर पधारी, तो चर्रा गई मशीन की काया, बल्ब बुझ गए मीटर थर्राया। हाँ बहुत अच्छे। तो चर्रा गई मशीन की काया, बल्ब बुझ गए मीटर थर्राया, और कांपता हुआ टिकट बाहर आया। तो टिकट पर वजन की जगह लिखा था कैपेसिटी ओवर। टिकट पर वजन की जगह लिखा था कैपेसिटी ओवर। और जैसे ही टिकट को पलटकर भाग्यफल पड़ा, तो यहाँ पे तो गजब ही हो गया। जैसे ही टिकट को पलटकर भाग्यफल पड़ा, तो उस पर मैडम का नहीं मशीन का भाग्यफल लिखा था। तो उस पर मैडम का नहीं मशीन का भाग्यफल लिखा था। हे भगवान, क्या खाती है, चमत्कार हो गया, और इसके पधारने से तो अपना अंतिम संस्कार हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इस कॉलेज के अंतिम क्षण हैं, और अगर मैं शायरी ना पढ़ूं तो शायद मेरा पिंडदान ना हो, ठीक है। तो एक शायरी पढ़ना चाहूँगा। एक बार मुझे आदेश कर दीजिए, इशारा कर दीजिए कि मैं शायरी पढ़ूँ आपके बीच। मैं आपको बताता हूँ कि कोई शख्स शायर कैसे बनता है। कि कभी आंखों में रौनक थी, अभी हालत हुई गमगी। कभी आंखों में रौनक थी, अभी हालत हुई गमगी। ये तेरे दिल की है साजिश, बताने की थी क्या जल्दी। ये तेरे दिल की है साजिश, बताने की थी क्या जल्दी। मैं तो बस एक पंछी था, हवा के गीत गाता था। मैं तो बस एक पंछी था, हवा के गीत गाता था। मुझे शायर बना के तू कहाँ चल दी, कहाँ चल दी। आसम है जी, आसम। शुक्रिया। और एक शायरी जो शायद आप लोग सुनना चाहते हैं मेरे कुछ दोस्त। घर से बाहर वो नकाब में निकली, रजत भारद्वाज, ये आपके लिए डेडिकेटेड है। घर से बाहर वो नकाब में निकली, वाह वाह करके सुनिए तो ज्यादा मजा आएगा आपको। घर से बाहर वो नकाब में निकली, सारी गली उनकी फिराक में निकली। घर से बाहर वो नकाब में निकली, सारी गली उनकी फिराक में निकली। इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से, इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से, और हमारी ही तस्वीर उनकी किताब में निकली। वाह सर। शुक्रिया। और दोस्तों, एक अंतिम शेर, जहाँ तक आप लोग इतनी देर से मुझे झेल रहे हैं तो 2 मिनट और सही। अंतिम शेर ये है कि अपने जूनियर्स को और अपने बैचमेट से ये कहना चाहूँगा कि हो सके तो खुद पर एहसान इतना करना, हो सके तो खुद पर एहसान इतना करना कि जिंदगी में जिंदगी भर जिंदा दिली जिंदा रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया सर। नाउ वी हैव अवर डांसिंग सेंसेशन इन EC 3rd year, राही सिंगर।